A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we will discuss the chapter number 16. The name of this chapter is Adjectives, Degrees of Comparison. Okay, so today we will discuss about the degrees of comparison and what are the degree of comparison. Second one, what is the function of these degrees? Next is what are the rules of फॉर्म द डिग्री ऑफ कंपैरिजन की क्या रूल होते हैं, कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द डिग्री of comparison. Yes, degrees of comparison are used when we compare one person or one thing with another. Comparison क्या होता है? जब हम किसी को compare कर रहे हैं एक person से या दूसरे person से, या हम एक person को बहुत सारे person के साथ हम compare करते हैं, so here we use as a word comparison. So let's start. Yes, you all know about that degree of comparison. There are three kinds of comparison: as a positive degree, comparative degree, and superlative degree. Yes, the first one is a positive degree. Yes, an adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. जो भी adjective होते हैं इस डिग्री में, लेकिन उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता, वो है कहलाती है हमारी पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, यतीन इज स्ट्रॉन्ग, Sharwani is small, Mandar is tall, Yash is clever, and Samir is brave. So you notice that the strong, small, tall, clever, and brave are the adjective. But in this sentence, you notice that no comparison is here. किसी के साथ कोई comparison नहीं कर रखा, तो ये कहलाती है हमारी positive degree. Next is comparative degree. Yes, comparative degree is used when we compare two person or two things with each other. देखिए, जब भी हम comparative degree यूज करते हैं जिसमें दो पर्सन की या दो थिंग्स की आपस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं with greater intensity of adjective. Clear? For example, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन. ओके, यह हाउस उस हाउस से बड़ा है. तो दो हाउस के बीच में कंपैरिजन करवा रखा है कि यह हाउस उस हाउस से बड़ा है. सेकेंड इज he is smarter than his brother. वो अपने ब्रदर से क्या है, ज्यादा स्मार्ट है. नेक्स्ट इज he is more intelligent than that boy. यह उस बॉय से ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो कंपैरिजन क्या किया उसके और बॉय के बीच में. नेक्स्ट इज रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन जैस्मिन. तो ये कह रहा है कि जो रोज और जैस्मिन के आपस में कंपैरिजन कर रखा है कि जो फ्लावर है ये, इसमें जो रोज है वो क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है किससे, जैस्मिन फ्लावर से. क्लियर? जब दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो here we use comparative degree. We will discuss later about this. Here we use as a er, than or more. Okay, next is superlative degree. Yes, superlative degree is used when we want to compare more than two person or thing. जब हम कंपेयर करना चाहते हैं एक पर्सन को दो पर्सन से ज्यादा, ये वो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्या होना चाहिए, दो पर्सन से ज्यादा होना चाहिए, दो तीन से ज्यादा नहीं, तभी तो कंपैरिजन होगा, है ना. दो के बीच में कंपैरिजन होता है वो तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहलाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. एंड टू शो द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव. और ये क्या शो करती है, ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की सबसे हम बोल सकते हैं हाईएस्ट, सबसे बड़ी जो इंटेंसिटी होती है वो शो करती है. For example, now number one, this house is the biggest house in the block. Okay, now we compare, understand sentence. Now we compare this house. This house is the biggest house in the block. इस block के अंदर जितने भी house है उसमें सबसे बड़ा house किसका है, ये this house, ये house है. मैं point out करके बोल रही हूँ ना, this house is the biggest. biggest से हमको समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा. Next is he is the most intelligent student in the class. So here we use he is the most intelligent. मतलब उसको, मतलब कोई एक boy है, मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ, जैसे मैंने नाम ले लिया तरुण. तरुण is the most intelligent student in the class. तो तरुण का सभी स्टूडेंट से कंपैरिजन करा है मेरे, कि क्या कंपेयर किया है मैंने, कि वह पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. नेक्स्ट इज Rose is the most beautiful girl. Here we use as a word Rose. तो here Rose is the most beautiful girl. बहुत ही सुंदर गर्ल है. तो इसमें सिंपली क्या कर रखा है कि हमने कंपैरिजन कर रखा है इन सिंपल लाइन में कि वह क्या है, सबसे सुंदर गर्ल है, कि आइडेंटिफाई हो रहा है द मोस्ट से. Next is here the example.
बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री। देखिए यू कैन सी इमेज, द हाउस है, वो क्या है, बिग है, मतलब हमको सिंपली पता है बिग है, इधर वी यूज एन एडजेक्टिव, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री व्हेन नो कंपैरिजन इज हियर। इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर दिस वन एंड दैट वन, हम इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यस, which one is bigger, इनमें से कौन बिगर है, yes second one is क्या है, bigger, yes this house is bigger than वन। ओके नेक्स्ट इज द बिगेस्ट। अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों में, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हाउस है, यस दिस वन, तो हियर वी यूज दैट बिगेस्ट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द हाउ द formation of comparative and superlative. So I'm sharing a book part. So let's understand from these sentences and then we will discuss the formation of comparative and superlative. So let's start. Read the following sentences. Number one, Raman is a strong boy. Harish is stronger than Raman. Next is Anil is the strongest of the three. Yes, the adjective is strong. Adjective के sentence में Raman is a strong boy. Yes, adjective is strong. Yes, ये क्या is in positive degree. क्या है ये, positive degree है. It simply denotes the existence of some quality in the thing or person we speak about. ये हमको क्या बताता है, ये simply हमको उसकी quality बताता है। अब आपको जैसे पता ही है कि जो adjective है वो क्या शो करता है, yes describe the noun or pronoun, it's qualify the noun or pronoun। तो जो strong है किसको qualify कर रहा है, रमन को। तो रमन कैसा लड़का है, strong वो है, तो simply qualify the quality। and we speak about, जिसके बारे में हम बात करते हैं, yes it is used when no comparison is made। ये कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। सेकेंड सेंटेंस, हरीश इज स्ट्रॉन्गर देन रमन। तो द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर है यह क्या कहलाता है, एज ए वी यूज इन कंपैरेटिव डिग्री में हम स्ट्रॉन्गर यूज करते हैं बिकॉज इट डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से हायर डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। यस इट इज यूज्ड, टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में हम उसकी कंपैरिजन, उसकी जब हम तुलना करते हैं तो वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल हरीश इज स्ट्रॉन्गर देन रमन। रमन और हरीश के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमको पता चल रहा है कि हरीश क्या है, रमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर थर्ड, द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट यस इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ये डिनोट करती है, क्या डिनोट कर रही है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी की सबसे हाईएस्ट डिग्री शो करती है। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर। ये यूज किया जाता है जब दो ऑब्जेक्ट्स का उनसे ज्यादा का कम, मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकते हैं या बहुत ज्यादा हो सकते हैं, उनसे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम यूज करते हैं हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सो नंबर थर्ड सेंटेंस, अनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री। तो अब रमन, हरीश और अनिल में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरिजन अनिल का किससे कर रहे हैं, रमन और हरीश के साथ। तो हियर वी यूज एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों, क्या आप हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको समझ गए कि जो अनिल है वो ही इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। सो हियर वी यूज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री। क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। First one, study carefully how the adjectives form the comparative and the superlative. Number one, the following adjectives form the comparative by adding er. जब भी हम जो भी adjectives given है as a positive degree में, तो उसका comparative हम by adding er, क्या simply add करते हैं हम er, हम use कर रहे हैं हमारा er। एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग est, और सुपरलेटिव में क्या यूज कर रहे हैं हम, est। तो देखते हैं थिक, थिकर, थिकेस्ट। अब हम देख रहे हैं कि जो ये जो थिक, थिकर, तो थिक के साथ हम ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज कर रहे हैं er, और सुपरलेटिव डिग्री में est। तो थिक, थिकर, थिकेस्ट। क्लियर? ये फॉर्मेशन है, आपको वर्ड्स के साथ जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री उसके साथ आपको er और est यूज करना है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। Clear? Kind, kinder, kindest, young, younger, youngest, sweet, sweeter, sweetest. Clear student? Number second, if the positive ends in e, अगर जो positive है वो end होता है किसमें बेटा, e में, so word is given here
ब्रेव। नाउ यू कैन सी ई हियर, ई लास्ट लेटर क्या है बेटा, एंड किससे हो रहा है, ई से। ओनली आर एंड एस टी, क्या हम देख रहे हैं, आर एंड एस टी, आर एंड एस टी आर एडेड टू फॉर्म द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो देखिए जब भी हमारा पॉजिटिव एंड होता है ई से, तो हम ओनली कंपेरेटिव में आर और सुपरलेटिव में ई एस टी यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है ई तो हमारा गिवन है ही। हमने क्या यूज किया था फर्स्ट में कि ई आर और ई एस टी, तो अब ई तो है, डबल ई तो हम यूज नहीं करते, हमारा वर्ड जो स्पेलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हम सिंपली क्या ऐड करेंगे, जो भी लेटर जो भी वर्ड लास्ट ई से एंड हो रहा है उसमें हम सिंपली आर और एस टी यूज करेंगे, और सुपरलेटिव में एस टी। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ नेक्स्ट वन, यस, इफ द पॉजिटिव एंड इन वाई, अगर जो आपका जो पॉजिटिव है वो एंड बेटा किससे हो रहा है, वाई से। क्लियर? एंड y इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है बेटा, व्यंजन। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव एंड किससे हो रहा है। देखिए वर्ड इज गिवन हियर y, पॉजिटिव एंड किससे हुआ बेटा हमारा, y से। तो हम हियर y इज हियर क्या है हमारा, एंड किससे हो रहा है, y से। नाउ y इज प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। जो अब हमारा जो y है वो y किससे प्रिसीडेड हो रहा है, कॉन्सोनेंट। तो y से पहले क्या गिवन है बेटा, p। क्या गिवन है, P। समझ गया आप, जो P गिवन है तो हम क्या यूज करेंगे, यस, द Y इज चेंज इनटू I। तो Y चेंज किसमें हो जाएगा, I के अंदर। Y चेंज हो रहा है बेटा हमारा I में। तो देखिए HAPPI किसमें चेंज हो गया, I में। बिफोर एडिंग ER, बिफोर एडिंग ER, तो ER लगाने से पहले हम किसमें चेंज कर दिया बेटा, Y को I में। क्यों चेंज किया, वापस से समझते हैं। क्योंकि अगर हमारा जो पॉजिटिव जो डिग्री का जो वर्ड है वो एंड हो रहा है किससे बेटा, Y से। Y इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो Y किसे प्रिसीडेड है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या है बेटा यहाँ पे, बताइए। कॉन्सोनेंट है हमारा P। P कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। ठीक है, तो अगर Y है और वो कॉन्सोनेंट से प्रिसीडेड है तो हम यूज करते हैं Y, इंस्टेड ऑफ Y वी यूज I and then we use ER and EST in superlative degree। अब देखिए हमने क्या यूज किया, Y इंस्टेड ऑफ Y we use I। हमने क्या यूज किया, I यूज किया and EST। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज मैरी, एंड किस हो रहा है, आर से। लेकिन उसे मैरी से पहले आर क्या गिवन है, वाई से पहले क्या गिवन है, आर। ऐसे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमने वाई को हटा के हमने वाई की जगह यूज किया आई ई आर, और सुपरलेटिव में यूज किया हमने आई ई एस टी। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज बट इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन भी है। तो देखिए GAY, GAY। तो अब Y से पहले तो हमारा क्या दे रखा है, क्या गिवन है, वॉल गिवन है ना, जिसको हम स्वर बोलते हैं। तो जब भी वॉल गिवन होगा हम ओनली ऐड करेंगे Y। हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, हम ओनली ऐड करेंगे ER और EST अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये तो हमारा किसके लिए यूज आया था हमारा बेटा, ये हमने यूज किया था हमारे, ये यूज किया हमने अपने कॉन्सोनेंट के लिए। इसमें क्या यूज कर रहे हैं, Y से पहले क्या है, वॉल गिवन है। तो वॉल गिवन है तो हम सिंपली कुछ भी चेंज नहीं करेगा Y में, कुछ भी हम इंस्टेड ऑफ Y वी यूज I। हमको नहीं यूज करना, हम यूज ओनली करेंगे ER और EST। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज इफ द पॉजिटिव डिग्री हैज ओनली वन सिलेबल। तो पहले हम समझेंगे वन सिलेबल। देखिए वन सिलेबल क्या है, जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड हो रहा है हमारा वन। जो साउंड प्रोनाउंस हो रहा है बेटा किसमें हो रहा है, वन। तो देखिए जैसे एक बार ही प्रोनाउंस हो रहा है, फैट, हॉट, बिग, सेट। हो रहा है नहीं हो रहा, वापिस से आप प्रोनाउंस करिए, फैट, हॉट, बिग, सेट। हो रहा है ना। तो जब भी हमारा जो वन सिलेबल है एंड इन अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से अगर एंड हो रहा है, सिलेबल वन है और एंड इसमें हो रहा है बेटा हमारा कॉन्सोनेंट से। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या है बेटा, यहाँ पे ए, वन कॉन्सोनेंट, एंड इन वन कॉन्सोनेंट। तो एंड हो रहा है टी, टी समझ गए आप, टी क्या है, कॉन्सोनेंट। एंड द कॉन्सोनेंट इज प्रिसीडेड बाय शॉर्ट वॉल। अब कॉन्सोनेंट से पहले क्या गिवन है बेटा, कॉन्सोनेंट से पहले ए गिवन है। ए हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, वो वॉल हो गया। ठीक है, जब भी हम ये होगा तो हम क्या यूज करेंगे, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ER। तो ER और EST से पहले ये जो कॉन्सोनेंट है,
कॉन्सोनेंट क्या है बेटा हमारा, ये देखिए कॉन्सोनेंट है हमारा डबल टी। क्या हो गया हमारा कॉन्सोनेंट को हमने क्या कर दिया बेटा, डबल टी। डबल टी, ई आर और ई एस टी तो हमको ऐड करना है कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, लेकिन हमको क्या करना है कि अगर हमारा जो वन सिलेबल है एंड हो रहा है, वन कॉन्सोनेंट एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से पहले अगर वाल गिवन है, वाल है हमारा ए, देखिए एच ओ टी ओ, वो क्या है वाल है, एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, बी आई जी, आई क्या है हमारा वॉल है और जी क्या है कॉन्सोनेंट है, एस ए डी, ए क्या है हमारा वॉल है स्वर है और डी क्या है कॉन्सोनेंट है हमारा। तो हमको समझ में आ रहा है कि जब भी अगर ऐसे होगा तो हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, एस ए डबल डी ई आर, एस ए डबल डी ई एस टी। क्लियर? Now next is many adjectives of two syllables and all the adjectives of more than two syllables take more before them to form the comparative and most form superlative। अब हम समझेंगे एक सिलेबल तो हमको समझ में आ गया, जब भी हम किसी वर्ड का किसी अक्षर का प्रोनाउंस करते हैं तब हम प्रोनाउंस करते समय एक बार में ही हम जब वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं तो एक बार में एक ही सिलेबल आ रहा है, जैसे फैट, हॉट, बिग, सेट, है ना, तो वो क्या कहता है वन सिलेबल। लेकिन अगर हमारा जो सिलेबल है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वन देन मोर। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारा जो सिलेबल है वो क्या हो रहा है, वन देन मोर हो रहा है। तो देखिए समझेंगे वन देन मोर कैसे हो रहा है। अगर मैं बोलती हूँ होटल, एच ओ टी ई, ठीक है, आई एम गिविंग यू अनदर वर्ड एज होटल है, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है ना, फेथफुल। तो इसको जो हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं टू पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया ना, फेथफुल, है ना, तो ये क्या होता है हमारा, क्या वन देन मोर सिलेबल है ना, वन देन मोर सिलेबल की हम अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहला रहा है कि एक से ज्यादा सिलेबल हम यूज कर रहे हैं। तो हमको अब क्या यूज करना है, मोर और मोस्ट, हमको ER और EST यूज नहीं करना है। क्या यूज नहीं करना है, ER और EST यूज नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट इज, यस देखिए एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड, है ना, ये क्या हो रहा है हमारा, मोर सिलेबल हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू थ्री सिलेबल का एग्जांपल देखिए, जैसे बटरफ्लाई, कैलेंडर, है ना, रेडियो, रेडियो, थ्री सिलेबल हो गए हमारे, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल मिस्ट्री, लाइब्रेरी, यस, एनर्जी, बाइसाइकिल, बनाना, बनाना, तो थ्री सिलेबल हो गए बनाना। तो जब भी हमारे ये जो होते हैं बनाना, मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो वर्ड होते हैं ये क्या बता रहे हैं हमको, ये बता रहे हैं कि वन देन मोर सिलेबल है, और जो भी एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, मोर और मोस्ट। क्या यूज करेंगे हम, मोर यूज करेंगे हम, सिंपली अपनी यूज करेंगे हमारी इसमें कंपैरेटिव डिग्री में, और हम यूज करेंगे मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इररेगुलरली। अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं किससे, इररेगुलरली। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और उसके साथ क्या यूज करते हैं हम, एल्डर और एल्डेस्ट। ठीक है, कभी हम यूज करेंगे ओल्डर और कई बार हम यूज करते हैं हमारा एल्डेस्ट। तो देखिए हम जब भी ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करते हैं, एल्डर, एल्डेस्ट यूज करते हैं, तो जब भी हमारा जब किसी का रिलेशन होता है तो हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करते हैं। जैसे ओल्डर इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द ओल्ड एंड वी यूज टू कंपेयर पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, ओके। और एल्डर, जब हम एल्डर यूज कर रहे हैं वी यूज एल्डर, एल्डेस्ट यूज करते हैं बिफोर अ नाउन फॉर मेंबर ऑफ फैमिली। जब भी हमारे कोई भी फैमिली मेंबर होते हैं तो हम यूज करेंगे हमारे के लिए एल्डर। और जब भी हम किसी दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो उससे बड़ा है, उसके साथ कोई कंपैरिजन मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, तो हम यूज करते हैं ओल्ड और ओल्डर। तो चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट। Now understand from this, mark the use of older and elder, oldest and eldest. देखिए he is older than I,
am. Hari is my elder brother. तो देखिए older यूज किया किसी दूसरे के साथ, he is older than I, ये इसका कंपैरिजन मेरे से हो रहा है तो हमने यूज की कंपैरेटिव डिग्री एज older, ठीक है। और Hari is my elder brother, तो Hari और मेरे बीच में क्या है, फैमिली रिलेशन है, तो मैंने क्या यूज किया, elder। तो यहाँ पर मैं older यूज नहीं करूंगी, तो यहाँ पर क्या यूज करूंगी मैं, elder। तो ये डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट इज he is the oldest boy in the class, वो क्लास में सबसे oldest boy है। तो क्लास के जो आपस में जो स्टूडेंट है वो आपस में रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, सतीश इज द माय एल्डेस्ट सन, तो सतीश और मेरा क्या है, बेटा है, सतीश मेरा बेटा है, तो क्या है, सन है। तो मेरा और सतीश के बीच में क्या है, फैमिली रिलेशन है। तो जब भी फैमिली रिलेशन होगा मैं क्या यूज करूंगी, एल्डर और एल्डेस्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज देन इज यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। हम देन यूज करते हैं किसके बाद, कंपैरेटिव डिग्री। जब हम कंपैरेटिव डिग्री ईआर यूज करते हैं तो उसके बाद यूज करते हैं हम देन। यू मस्ट रिमेंबर इट, आपको क्या रिमेंबर रखना है कि हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या क्या यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में तो हम ईआर यूज करते हैं, और हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकंड हम क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑफ द थ्री पेंसिल। नाउ द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले बेटा हम द यूज करते हैं। तो देखिए द बेस्ट, बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हमने यूज किया द, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री इज हियर बेटर इन द सेंटेंस, द नाउ आफ्टर दैट वी यूज दैट। अंडरस्टूड। हम कंपैरेटिव डिग्री में ईआर के साथ बाद हम यूज करेंगे देन, और सुपरलेटिव डिग्री की जो डिग्री होती है सेंटेंस में हम जब राइट डाउन करते हैं उससे पहले हम द यूज करते हैं। जैसे ही आपको द यूज, द अगर आपके फिलअप्स में गिवन है तो आपको पता चल जाएगा आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। अगर देन गिवन है तो आपको समझ गएंगे कि आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। Now, do not use a double comparative and superlative. Now, you must remember it. Okay? अभी समझ तो लिया हमने कि हम कहाँ पर ER यूज करेंगे, EST यूज करेंगे, more यूज करेंगे और more यूज, most यूज करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि do not use the double comparative and superlative. कहीं हमको double comparative और double superlative यूज नहीं करना। Such as more, better. Better तो already given है, ER हमने यूज किया, comparative डिग्री है ना, लेकिन उसके साथ हमने more यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, wrong। मोस्ट लवलीस्ट, अब लवलीस्ट तो हमारे लिए गिवन है ना, लवलीस्ट तो हमने क्या दे रखा है, दे ही रखा है, लेकिन लवलीस्ट के साथ अगर हमने मोस्ट लगा दिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझी। देखिए तरुण इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हरीश, हमने मोर भी यूज कर दिया, मोर स्ट्रॉन्ग होगा ना कि मोर, हम क्या यूज कर रहे हैं, मोर स्ट्रॉन्गर यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, अगर स्ट्रॉन्गर यूज करेंगे तो मोर यूज नहीं करेंगे, तो आपको एक यूज करना है। बट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस तरुण इज, और सिलेबल पे भी ध्यान देखना, अगर वन सिलेबल है, वन देयर मोर है तो मोर यूज करेंगे, अगर वन सिलेबल है तो हम ER-EST यूज करते हैं ना। तो देखिए स्ट्रॉन्ग वन सिलेबल ही है तो वन सिलेबल के साथ हम मोर भी यूज नहीं कर सकते, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, तरुण इज स्ट्रॉन्गर देन हरीश, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट, ही इज द मोस्ट ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, तो देखिए हमने क्या यूज किया, द ओल्डेस्ट आएगा तो मोस्ट भी यूज कर दिया तो वो क्या हो गया, मोस्ट भी यूज कर लिया हमने, ओल्डेस्ट भी यूज कर, तो दोनों डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या है बेटा हमारा, रॉन्ग। नेक्स्ट इज a few comparative are followed by two instead of then। अब जब देखिए, अब ये you must remember, this is a very important, underline this, ये very important है आपके लिए, टिक मार्क करेंगे हम इसको। few comparatives are followed by two, देखिए two हम क्या यूज कर रहे हैं, two, understand it, इंस्टेड ऑफ देन। अभी हमने समझे थे कि हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करना है, देन यूज करना है, लेकिन कई बार हम क्या यूज करते हैं, कई कंपैरेटिव डिग्री में, फ्यू मतलब बहुत कम ही यूज करते हैं वैसे तो, इंस्टेड ऑफ देन वी यूज टू। क्लियर। फॉर एग्जांपल इंफीरियर, सुपीरियर, देखिए अगर इंफीरियर वर्ड आता है, सुपीरियर वर्ड आता है तो हम टू यूज करें। देखिए दिस वॉच इज इंफीरियर टू दैट, द क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, ये क्लॉथ क्या है उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, उसके अंदर क्या यूज कर रखा है, कंपैरिजन कर रखा है, तो हियर इन दिस सेंटेंस वी यूज टू इंस्टेड ऑफ दैट। क्लियर। जूनियर और सीनियर, ही इज जूनियर टू विशाल, ओके जूनियर देन विशाल होगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ही इज 10 years senior to me, here we use to me, not we use then, he is 10 years senior than me, no we use to, हम क्या यूज करेंगे, to यूज करेंगे। understood। next is each, every, either और neither।
When used as adjective, go with singular noun. जब भी हम हमारे सेंटेंस में each boy, either road, neither knife, जो भी अगर each हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके किसके साथ यूज जाएंगे, जो हमारे go with singular noun, किसके साथ, वापस से समझे, go with singular noun. देखिए each boy, प्रत्येक boy, either road, neither knife, and every boy, प्रत्येक बॉय, और इसके साथ हमारी वर्ब भी हम देख लेते हैं, साथ में वर्ब भी क्या आ रही है, हम यूज कर रहे हैं एज अस, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर के साथ ही एज अ सिंगुलर फॉर्म की जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है वर्ब भी हम एज अ सिंगुलर ही यूज कर रहे हैं. ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज, एवरी बॉय वाज पनिश्ड. और बात तो प्रत्येक की हो रही क्लास के अंदर, लेकिन आपको पता है कि जब भी हम यूज करते हैं ईदर, नीदर, उसके साथ हम सिंगुलर नाउन ही यूज करते हैं, और हमारी जो वर्ब होती है वो भी हमारी क्या होती है बेटा, सिंगुलर ही यूज करते हैं. तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज पार्ट. तो आई एम शेयरिंग एक्सरसाइज. So let's start. This is a positive, comparative, and superlative. The first one is a good, better, best, bad, worse, worst, cost. देखिए कॉस्टली है ना, कॉस्टली तो हम यूज करेंगे मोर कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हमने अभी फॉर्मेशन देखा था तो वाई है ना. वाई को हटा के हम क्या यूज करेंगे, आई, और ईयर हम ऐड ही करते हैं कंपैरेटिव में, और ईएसटी हम यूज करते हैं सुपरलेटिव में. नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, thin, thinner, thinnest, gay, gayer, gayest, sad, sadder, saddest. Okay. Holy, holier, holiest, weak, weaker, weakest, wise, wiser, wisest, pretty, prettier, prettiest, large, larger, largest, active, more active, most active, red, redder, reddest, big, bigger, biggest, proud, prouder, proudest. Clear, student? Now, next one. Merry, merrier, merriest, dull, duller, dullest, hot, hotter, hottest, famous. Yes, more famous, most famous. जब भी हमारा one than more syllable होगा हम यूज करेंगे more और most. Gentler, gentlest, abler, ablest, luckier, luckiest, drier, driest, smaller, smallest, more important, most important, more intelligent, most intelligent. Next is heavy, heavier, heaviest, cold, colder, coldest, beautiful, beautiful. Three syllable है तो more beautiful, most beautiful. Lovely, lovelier, loveliest, ripe, riper, ripest, idle, idler, idlest. Okay, high, higher, highest, thick, thicker, thickest, interesting, more interesting, most interesting, industrious, more industrious, most industrious, light, lighter, lightest. Okay, student. So now I'm sharing again the next exercise. One, yes. Exercise number 2. Yes, fill in the blanks with the correct forms of adjectives within the brackets. Yes, adjective here given here. First sentence, this is the dash price I can take. So firstly, you can identify the, so you have to use as a superlative degree. Clear? So you have to write here. Yes, little, less, least, L-T-A-S-T. Clear? Next one is here. This is the, already the is given dash flower I have ever seen. So pretty है तो the से हमको समझ गई superlative degree. तो here we write prettier, P-R-E, prettiest, double T-I-E-S-T, prettiest. Okay.